پاکستان کی سعودی عرب اور بحیرہ احمر میں تجارتی جہاز رانی کے خلاف دھمکیوں کی مذمت. کہا حوثی باغیوں کے ایسے اقدامات علاقائی سلامتی اور سمندری نقل و حمل کی آزادی کے لیے خطرہ ہیں. پاکستانی پرچم بردار جہازوں کو نشانہ بنانے کی کوشش کو قومی سلامتی کے لیے خطرہ تصور کیا جائے گا. پاکستان قومی مفادات کے تحفظ کے لیے ضروری اقدامات کا حق محفوظ رکھتا ہے. اقوام متحدہ کے منشور اور بین الاقوامی قانون کے مطابق پاکستان کو جوابی کارروائی کا حق ہے. پاکستان سعودی عرب کی سلامتی خود مختاری کے لیے غیر متزلزل حمایت جاری رکھے گا. بلوچستان کے مختلف علاقوں میں سیکیورٹی فورسز کی کارروائیاں. 10 دہشت گرد ہلاک. ISPR کے مطابق ضلع سراب میں 7 اور مستونگ میں 3 دہشت گرد مارے گئے. فتنہ الہندوستان کی 2 خودکش بمبار خواتین اور سہولت کار گرفتار. فتنہ الہندوستان اور فتنہ الخوارج کے خلاف کارروائیاں خفیہ اطلاعات پر کی گئیں. دہشت گردوں کے مکمل خاتمے کے لیے کلیئرنس آپریشنز جاری. ملک میں مانسون کا طاقتور سپیل. لاہور، سیالکوٹ، گجرات، ساہیوال سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں بادل برسنے کا سلسلہ جاری. سیالکوٹ میں محلوں اور شاہراہوں پر پانی جمع. گجرات میں سڑکیں اور نشیبی علاقے زیر آب آئے. ریلوے ٹریک سمیت مرکزی شاہراہوں پر پانی جمع رہا. فیصل آباد میں تیز بارش سے نشیبی علاقے زیر آب. وزیر آباد، کمالیہ، حافظ آباد، پنڈی بھٹیاں، بھیرا اور سرگودا میں موسلا دھار بارش. بھکر، لیا اور ڈی آئی خان میں سڑکوں اور گلیوں میں پانی جمع رہا. لاہور میں مسلسل دوسرے روز بادل برسنے کا سلسلہ جاری. شہر کی مختلف سڑکیں اور گلیاں پانی میں ڈوبی رہیں. لارنس روڈ، مزنگ، شالیمار کالج روڈ، گلبرگ میں پانی جمع ہو گیا. شہریوں کو پانی سے گاڑیاں گزارنے پر مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. لاہور میں سب سے زیادہ بارش لکشمی چوک پر 123 ملی میٹر ریکارڈ. پانی والا تالاب میں 122 اور سمن آباد میں 90 ملی میٹر بارش. محکمہ موسمیات کی مزید بادل برسنے کی پیش گوئی. پنجاب کے مختلف شہروں میں بارش کے بعد نکاسی آب کا کام مکمل. ضلع گجرات میں ریکارڈ بارش کے بعد 3 گھنٹوں میں پانی کی نکاسی مکمل کر لی گئی. پی ڈی ایم میں پنجاب کی مانسون کی صورتحال پر فیکٹ شیٹ جاری. دریاؤں، ڈیمز اور بیراجز کی مسلسل نگرانی کا عمل بھی جاری. وزیر اعلیٰ پنجاب کی ضلعی انتظامیہ کو کمزور اور ناقص چھتوں کی نگرانی کی ہدایت. مریم نواز نے کہا حادثات میں زخمیوں کو بہترین طبی امداد فراہم کی جا رہی ہے. متاثرہ خاندانوں کے نقصانات کا ازالہ کیا جائے. پنجاب میں بارش سے دیواریں اور چھتیں گرنے سے 9 افراد جاں بحق، 37 زخمی. گجراوالا میں 4 افراد جاں بحق. کاموں کی انڈر پاس میں پانی میں ڈوب کر ایک بچہ جاں بحق. پاک پتن اور ساہیوال میں چھتیں گرنے سے 3 افراد جاں بحق ہوئے. لالا موسیٰ میں مکان کی چھت گرنے سے ایک شخص جاں بحق ہو گیا. فی تولہ سونا 4,600 روپے مہنگا. نئی قیمت 4,33,836 روپے ہو گئی. 10 گرام سونا 3,71,944 روپے کا ہو گیا. پاکستان نے امریکہ سے 10 ارب ڈالر کے زر مبادلہ استحکام فنڈ کے لیے درخواست کر دی. رائٹرز کے مطابق پاکستان نے امریکی وزیر خزانہ کو 5 سالہ مالی سہولت کی تجویز دی. درخواست ایران امریکہ مذاکرات میں سہولت کاری کے بعد سامنے آئی. منظوری کی صورت میں ملک کے زر مبادلہ کے ذخائر میں اضافہ، روپے پر دباؤ میں کمی ہونے کی توقع. وزارت خزانہ اور امریکی محکمہ خزانہ کا فوری رد عمل سامنے نہ آ سکا. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی امریکی وزیر خزانہ سے ملاقات. معاشی تعاون اور سرمایہ کاری بڑھانے پر اتفاق. وزیر خزانہ کا عالمی مالیاتی منڈیوں تک بہتر رسائی میں تعاون کی خواہش کا اظہار. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی واشنگٹن میں امریکی مالیاتی ادارے کے وفد سے ملاقات. توانائی، IT، انفراسٹرکچر اور معدنیات سمیت ترجیحی شعبوں میں سرمایہ کاری بڑھانے پر زور.
पेट्रोल 4 रुपए 93 पैसे फी लीटर महंगा, डीजल की कीमत में 7 रुपए 15 पैसे फी लीटर इजाफा। पेट्रोल की कीमत आज के दिन के लिए फी लीटर 320 रुपए 73 पैसे मुकर्रर, डीजल की कीमत 367 रुपए 21 पैसे फी लीटर हो गई। 2 रोज में डीजल तकरीबन 13, पेट्रोल 4.5 रुपए फी लीटर महंगा हुआ। ओगरा के नोटिफिकेशन के मुताबिक 1 लीटर पेट्रोल पर लेवी 85 रुपए है, 1 लीटर डीजल पर लेवी तकरीबन 75 रुपए है। कल पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमत क्या होगी, ऐलान आज रात होगा। पेट्रोल पंप मालिकान का आज रात से हड़ताल का ऐलान, कहा रोजाना की कीमतें आधा तीतर आधा बटेर वाली कहानी है, कीमतें रोजाना नहीं माहाना बुनियाद पर तय करें। वजीर आजम के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली ने कहा पंप मालिकान को मुज़ाकरात के लिए बुलाया है, मामलात तय करेंगे। अमरीका के ईरान पर मुसलसल 11वें रोज भी हमले, अमरीकी फजाइया ने ईरान के शहर तबरेज के करीब फौजी तनसीब को निशाना बनाया। तेहरान के मुख्तलिफ इलाकों में धमाकों की आवाजें, सिरिक और दीगर साहिली इलाकों में भी हमले किए गए। इराक में मारे जाने वाले अमरीकी फौजियों की लाशें आज शाम अमरीका पहुंचाई जाएंगी। व्हाइट हाउस के मुताबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप डेलावेयर में लाशें वसूल करेंगे। अमरीकी हमलों के बाद ईरान की जवाबी कार्रवाई, कुवैत में मुतादिद रडार सिस्टम्स गैर फाल करने का दावा, उर्दन और बहरीन में भी अमरीकी तंजीबात को निशाना बनाया गया। पासदारान इनकिलाब ईरान ने कहा कि गुज़िश्ता शब आबनाए हुर्मुज़ में बहरी हिफाजती ज़वाबित की मुबैना खिलाफ वर्जी की गई, दुश्मन की किसी भी दरअंदाजी का भरपूर और सख्त जवाब दिया जाएगा। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो ने कहा अमरीका अब भी बहरान के सिफारती हल के लिए मुज़ाकरात पर आमादा है। तेहरान संजीदा मुज़ाकरात के लिए तैयार दिखाई नहीं देता। ईरान को आबनाए हुर्मुज़ पर कंट्रोल की इजाजत नहीं दी जा सकती। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो की मनीला में चीनी हम मनसब से मुलाकात, मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पर बातचीत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और ईरानी हम मनसब सिकंदर मोमनी की मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी तिजारत को मजीद मुस्तहकम बनाने पर इत्तेफाक। मोहसिन नकवी ने कहा कि ईरानी वज़ीर खारजा और वज़ीर दाखिला ने अमन के लिए गैर मामूली काम किया। उम्मीद है अब भी अच्छी खबर जल्द सामने आएगी और अमन कायम होगा। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी की भी ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी से मुलाकात, रेलवे तिजारत सरहदी राब्तों और इक्तिसादी ताउन को मजीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। भारत में तलबा और नौजवानों का एहतजाज मोदी हुकूमत के लिए बड़ा इम्तिहान बन गया। तशद्दुद के बावजूद मुजाहिरीन ने पीछे हटने से इनकार कर दिया। नई दिल्ली में पुलिस के साथ भारतीय फौज का भी मुजाहिरीन पर तशद्दुद। आदादो शुमार के मुताबिक 2 अस्पतालों में 100 से जायद जख्मियों को लाया गया। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने तलबा तशद्दुद केस की फौरी समाअत की दरखास्त मुस्तरद कर दी। कहा बराहे करम हमारा वक्त जाया न करें। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की मनीला में रूसी वज़ीर खारजा से मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी ताउन का तफसीली जायजा लिया। तवानाई समेत दीगर शोबों में ताउन मजीद मजबूत बनाने के आज़म का यादा। दोनों रहनुमाओं में इलाकाई और आलमी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का एशियाई तरक्याती बैंक के हेडक्वार्टर्स का भी दौरा। जनूबी वजीरिस्तान में मूसलाधार बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल, घर की छत गिरने से 4 अफराद जाँ बहक, मरने वालों का ताल्लुक एक ही खानदान से है। टांक वजीरिस्तान शाहराह डूब गई, कई गांव जेरे आब। खैबर पख्तूनख्वा में 3 दिन में बारिशों से हादसात में 18 अफराद जाँ बहक, 19 जख्मी। PDMA के मुताबिक बारिशों से 28 घर मुतासिर, 6 मुकम्मल तबाह हो गए। मुल्क में 24 जुलाई तक तूफानी बारिशों और सैलाबी सूरत हाल का इम्कान। NDMA का अलर्ट जारी। दरियाई चिनाब और जहलम में ऊंचे दर्जे के सैलाब की वार्निंग। लाहौर, रावलपिंडी, सियालकोट, गुजरावाला में अर्बन फ्लडिंग का अलर्ट। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर और बलूचिस्तान के नदी नालों में तुग़यानी और लैंडस्लाइडिंग का खतरा। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में इजाफा। ब्रेंट क्रूड की कीमत $92 फी बैरल से बढ़ गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत $85 फी बैरल से जायद रिकॉर्ड। अमाराती खाम तेल की कीमत $85 फी बैरल तक पहुंच गई।
गैस गर्दिशी कर्ज में 1700 अरब कमी का मंसूबा, IMF राजी ना हो सका। गैस सेक्टर का मजमूई गर्दिशी कर्जा 3300 अरब रुपए तक पहुंचने पर IMF का तशवीश का इजहार, हुकूमत को गर्दिशी कर्जे में कमी लाने के लिए तजावीज़ दे दी। कहा गैस कंपनियों के नुकसानात को भी सेटलमेंट प्लान में शामिल किया जाए। मामले पर हतमी मुज़ाकरात सितंबर में मुतवक्के। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब के साथ सिविल एटमी मुआहिदे की मंजूरी दे दी। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा, कहा मुआहिदे के तहत सिविल एटमी तवानाई के शोबे में तवीलुल मुद्दती शराकत दारी कायम की जाएगी। मुआहिदा अमरीकी कांग्रेस के सामने मंजूरी और जायजे के लिए पेश किया जाएगा। अमरीकी वजीर जंग पीट हेग्सेथ ने कहा कि ईरान जंग पर अब तक 37 अरब 50 करोड़ डॉलर लागत आई, मजीद 87 अरब डॉलर की जरूरत है। अमरीकी वजीर जंग पहली मरतबा जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल डैन केन के हमरा सेनेट कमेटी बराए मुख्तस फंड्स के सामने पेश हुए और सख्त सवालात का जवाब दिया। कहा जंग पर आने वाले अखराजात पहले तखमीने से 8 अरब डॉलर ज्यादा हैं। कानून साजों ने कहा कि ये आपकी नाकामी है। वजीर दिफा और अमरीकी सेनेटर्स में शदीद तल्ख कलामी। नए बरतानवी वजीर आजम एंडी बर्नम का अमरीकी फौजी तैयारों के लिए बरतानवी अड्डे देने का फैसला। ब्लूमबर्ग के मुताबिक बहरे हिंद में वाक़े अड्डे अमरीकी तैयारों के लिए इस्तेमाल किए जा सकेंगे। फैसले पर बरतानवी ऑपोजिशन की मुखालिफत। कराची के इलाके डिफेंस में फूल बेचने वाले बाप और बेटों को तेज रफ्तार गाड़ी ने कुचल दिया। अलमनाक हादसे में बाप जाँ बहक, बेटा जख्मी, एक बच्चा मौतजाती तौर पर महफूज रहा। हादसे की जिम्मेदार डबल केबिन गाड़ी में 2 अफराद सवार थे। हादसे की CCTV फुटेजेस सामने आ गई। सिग्नल बंद था, कार सवार ने फुटपाथ पर से गुजरने की कोशिश की। हादसे का मुकदमा दर्ज, पुलिस की मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें जारी। अगर एक जाहिल इस मुल्क की रहनुमाई करे तो उसका दिल यही चाहेगा कि पूरा मुल्क उसी की तरह जाहिल, ना समझ, ना काबिल और बेरहम बने। इस वक्त मेरा दिल भी भरा हुआ है और मैं गुस्से से खौल भी रहा हूँ ये देखकर कि हमारे इन बच्चों के साथ किस तरह जुल्म का बर्ताव किया जा रहा है उन गुंडों के हाथों जो मुझे अमेरिका के आइस एजेंट्स की याद दिलाते हैं, मुंह पे नकाब लगाए हुए, हाथ में डंडा लिए हुए। कभी अपने बच्चों के बारे में भी सोचा करो और ये भी सोचो कि तुम्हारा अंजाम तुम्हें भी एक दिन मिलेगा जरूर। बॉलीवुड के सीनियर अदाकार नसीरुद्दीन शाह की नई दिल्ली में तलबा पर तशद्दुद की मजम्मत। दिल्ली पुलिस को गुंडा करार दे दिया। कहा तलबा के साथ जुल्म किया जा रहा है। नौजवान मुजाहिरीन हिम्मत ना हारें, जिद्दोजहद जारी रखें। मोटरवे ज्यादती केस, दोनों मुजरिमान की सजाए मौत के खिलाफ अपीलें मुस्तरद। लाहौर हाई कोर्ट का तहरीरी फैसला जारी। कहा DNA, मेडिकल और फॉरेंसिक शवाहिद ने जुर्म साबित कर दिया। शिनाख्त परेड में दोनों मुलजिमान की दुरुस्त शिनाख्त हुई। मुजरिमान को इज्तिमाई ज्यादती केस में कोई रियायत नहीं दी जा सकती। वजीर आला मरियम नवाज का देही खवातीन को मुआशी खुद मुख्तारी देने का इकदाम। पहले मरहले में DG खान, मुजफ्फरगढ़, राजनपुर, लैया, कोटअद्दू, बहावलपुर समेत 13 अजला में जानवरों की फराहमी शुरू। मरियम नवाज ने कहा इकदाम से गुर्बत जैसे चैलेंज से निपटा जा सकता है। देही खवातीन को पायदार लाइव स्टॉक, रोजगार और माली मुआवनत के जरिए ही खुद मुख्तार बनाया जा सकता है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी से कैनेडियन हाई कमिश्नर की मुलाकात। 2 तरफा ताउन और तिजारती ताल्लुकात के फरोग पर तबादला ख्याल। वजीर आला ने कहा कि सूबाई हुकूमत इमदाद से तिजारत की जानिब मुंतकिली की पॉलिसी पर अमल पैरा है। गैर मुल्की सरमायाकारों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा। हाई कमिश्नर ने कहा कि कैनेडा खैबर पख्तूनख्वा के साथ तिजारती रवाबित मजीद मुस्तहकम करना चाहता है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मनफी रुझान। 100 इंडेक्स में 1500 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी। कुछ देर पहले इंडेक्स 1,74,000 पॉइंट्स की सतह पर देखा गया।